دوستو بہت جلد یاسر کی ملاقات صوفی سے ہونے والی ہے، مگر اس دوران اور بھی مزے کے سین ناول میں شامل ہیں۔ پہلی چنگاری ناول کی مزیدار ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی۔ اب سب کی سپورٹ ملتی رہی تو اس ناول کو اب تک مکمل پہنچاؤں گا۔ چلتے ہیں مزیدار ایپیسوڈ کی طرف۔ بھابی بولی، تم جو کوئی بھی ہو بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں منہ مانگی دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ای میں کاٹ کر ہنستے ہوئے بولا، واہ واہ بھابی، میری محبت کو دولت میں تول رہی ہو، ویسے بھی تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کام کے لیے میرے ساتھی موجود ہیں، وہ خود ہی سارا کیش نکال لیں گے۔ اگر تم دونوں زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں جو کام کہا ہے وہ تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ اب وہ کام چاہیے آرام سے، پیار سے، لاڈ سے کروا لو، چاہے زبردستی کروا لو، کروانا تو تمہیں پڑے گا، ورنہ میں اپنا کام بھی کر لوں گا اور جاتے جاتے تم دونوں پر لٹکا کر جاؤں گا، کیونکہ جو چیز مجھے نہیں ملتی وہ چیز کسی اور کے استعمال کے قابل بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ کہہ کر میں بھابی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے لے کر اب تک جو باتیں تم دونوں کے درمیان ہوئیں اور جو کچھ تم دونوں نے کیا، میں نے سب کچھ دیکھا ہے اور سب کچھ سنا ہے، اس لیے مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے ہاں یا نا میں جواب دے دو۔ میں نے نارمل ہوتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ بھابی آہستہ سے بولی، جیا۔ ای میں مسکرا کر بولا، واؤ جیا، کیا خوبصورت نام رکھا ہے تمہارا، تمہارے ماں باپ نے جس طرح تم خوبصورت ہو ویسے ہی تمہارا نام خوبصورت ہے۔ یہ کہہ کر میں سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، دیکھو جیا، تمہارے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ بہت پسند آیا ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آج تم نے یہ موقع گنوا دیا تو پھر ایسا تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا، اس لیے میری بات مان لو۔ تمہارا شوہر بھی نہیں یہ سب دے سکا، اور نہ ہی تمہارے بوائے فرینڈ سنجے دے سکا ہوگا۔ سنجے کا نام سن کر بھابی نے چونک کر میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم سنجے کو کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا، جیسے تم جانتی ہو ویسے ہی میں سنجے کو جانتا ہوں۔ او بھابی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ میں نے پورے کانفیڈینس سے کہا، مطلب کہ جیسے سنجے تمہارا دوست ہے ویسے ہی میرا دوست ہے۔ پہلی دفعہ میں نے تمہیں سنجے کے ساتھ ہی دیکھا تھا، اسی دن سے میں تمہارے پیچھے ہوں۔ او بھابی بولی، کب؟ کس جگہ؟ میں نے کہا، چھوڑو ان فضول باتوں کو، کیوں میرا ٹائم برباد کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر میں جیا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل موضوع پر واپس آتے ہوئے بولا، اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی تو تم جے کر رہی ہو۔ میں نے جیا بھابی کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کی گوری گالوں پر سرخی کے ڈورے نمایاں ہونے لگ گئے تھے، اور چہرے پر خوف کی بجائے رونق کی جھلک نظر آنی شروع ہو گئی تھی۔ جیا بھابی میری جانب دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولی، ساتھ والا میرا بیڈ روم ہے مگر؟ میں چونک کر بولا، مگر کیا؟ بھابی بولی، تمہارے ساتھی باہر موجود ہیں اور راجیش۔ میں بھابی کی بات کاٹتے ہوئے سرگوشی میں بولا، میرے ساتھی نیچے ہیں اور وہ میری اجازت کے بغیر اوپر نہیں آئیں گے، ویسے بھی میں تو صرف تم سے ملنے آیا تھا، اس لیے میں نے انہیں اوپر آنے سے منع کر دیا تھا۔ رہی راجیش کی بات تو اس کو میں نے مکمل بے بس کر دیا ہے، جب تک اسے کوئی کھولے گا نہیں وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ بھابی چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، جتیندر تم جیسے کہو گے میں ویسے کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے دھوکہ مت دینا، یہ نہ ہو کہ باہر تمہارے ساتھی۔ بھابی کی بات کو سمجھتے ہوئے میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو جی، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھی تمہیں کچھ کہیں گے تو ایسا کچھ کرنا ہوتا تو وہ اس کمرے میں بھی آ سکتے تھے، ویسے بھی میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں، ایک عرصے سے تمہارا پیچھا کرتا ہوا آج تمہارے گھر تک پہنچ گیا ہوں، اس لیے تم بے فکر رہو، ایسا کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر بھی تمہیں کوئی شک ہے تو میں یہاں ہی کر لیتا ہوں، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں مزہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ تم خود مجھ سے ملاقات کرنے کی خواہش کرو۔ ہم دونوں اتنی سرگوشی میں بات کر رہے تھے کہ صوفے کے پیچھے پڑے راجیش تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ بھابی چند لمحے میری جانب دیکھنے کے بعد اٹھ کر بولی، میرا ٹراؤزر کہاں ہے؟ میں نے کہا، تمہارا ٹراؤزر تو راجیش کو باندھنے میں استعمال ہوا ہے، فی الحال تم راجیش کا پہن لو۔ یہ کہہ کر میں نے نیچے سے اٹھا کر بھابی کو پکڑا دیا۔ بھابی ٹراؤزر کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو مٹی سے بھر گیا ہے۔ میں نے کہا، اگر تم چاہو تو ایسے ہی ہم باہر جا سکتے ہیں، باہر کوئی بھی نہیں ہے اور ویسے ہی تم نے ساتھ والے کمرے میں جانا ہے۔ بھابی نیچے پھینک کر بولی، اس سے بہتر ہے میں ایسے ہی چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر بھابی دروازے کی جانب جانے لگی۔
अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ये मुझे बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में तो नहीं। ये ना हो कि ये मुझसे पहले अपने कमरे में दाखिल होकर फौरन दरवाज़ा लॉक कर दे या कोई और पिंगा खड़ा कर दे। मैंने भाभी को रोकते हुए कहा, एक मिनट भाभी। भाभी मेरी जानिब सवाली नज़रों से देखने लगी। मैं सर पर पगड़ी ठीक करते हुए बोला, चलो भाभी। मुतमईन अंदाज में दरवाजे के पास पहुंची तो मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर नज़र मार कर तसल्ली करने के बाद भाभी को बाहर आने का कहा। जैसे ही भाभी बाहर आई तो वो चारों तरफ नज़र मारते हुए ड्राइंग रूम का जायजा लेने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए जानबूझकर भाभी का हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, जाने मन सारी जिंदगी मज़े करोगी। जिस चीज़ से तुम डर रही हो ऐसा कुछ नहीं है। कहते हुए मैंने कमरे की लाइट बंद करने के बाद दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी ताकि राजेश अगर किसी तरह दरवाज़ा तक पहुंच भी जाए तो कमरे से बाहर ना निकल पाए। इस दौरान मैंने भाभी का हाथ नहीं छोड़ा। भाभी बोली, जितेंद्र। मैं होंठों पर उंगली रखकर कहते हुए बोला, इसे कुछ नहीं होगा। इसे तो ये भी मालूम नहीं पड़ा कि हम कमरे से बाहर आ गए हैं। इस तरह तुम इसे ये भी बहाना लगा सकती हो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया और फरार हो गया। ये मेरी बात सुनकर भाभी गहरी सोच में मुब्तला हो गई। भाभी को सोच में गुम देखकर मैंने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, किस सोच में गुम हो? जल्दी बताओ किस कमरे में जाना है? भाभी कुछ दूर कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो मेरा बेडरूम है। मैंने कहा, कमरे में तुम्हारा शौहर तो नहीं? भाभी नफी में सर हिलाते हुए बोली, वो मीटिंग के लिए दूसरे शहर गया है। 2 दिन बाद वापस आएगा। इसका फायदा उठाते हुए राजेश ने मुझे ब्लैकमेल किया था। ये मैंने कहा, चलो कमरे में चलकर बाकी की बातें करते हैं। यहां खड़े रहना मुनासिब नहीं। भाभी खामोशी से कमरे की जानिब चलने लगी तो मैंने लाड दिखाते हुए इसे बाजू में उठाते हुए कहा, मैं अपनी जान को बाजू में उठाकर कमरे में लेकर जाता हूं। हालांकि भाभी की जानिब से मुझे काफी हद तक तसल्ली हो चुकी थी, फिर भी मैं ऐसी सूरत-ए-हाल में किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। भाभी ने हल्का सा हाय जितेंद्र किया कहा और साथ ही चुपकुत्ते हुए बोली, जितेंद्र तुमने क्या पहना हुआ है? मैं समझ गया था कि भाभी को बुलेट प्रूफ जैकेट का एहसास हो गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे धंधे में ये सब पहनना पड़ता है। भाभी बोली, कौन से धंधे में? मैं बोला, जो मेरे साथी नीचे कर रहे हैं। भाभी से बातें करते हुए मैं भाभी को उठाए कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में जहाजी साइज का बेड लगा हुआ था। कमरे की मुख्तसर मगर दीदा जेब सेटिंग थी। बेड के करीब पहुंचकर उसको बेड पर बिठाया। वो नर्म मैट्रिस में धंस गई। मैं वापस दरवाजे की जानिब बढ़ा और फुर्ती से दरवाज़ा बंद करके लॉक करने के बाद वापस बेड की जानिब मुड़ा। इसी दौरान मेरी नज़र दीवार पर लगे घड़ी पर पड़ी तो 3 बजने वाले थे। मौसम के लिहाज से सूरज तुलू होने में अभी 2-3 घंटे बाकी थे। मैं भाभी के करीब जाकर बेड पर बैठते हुए बोला, जिया तुम जैसी हसीन लड़की की जगह सिटोर में पड़े कबाड़ सोफे पर नहीं बल्कि ऐसे नर्म बिस्तर पर होनी चाहिए। इतना आरामदेह बिस्तर छोड़कर तुम सिटोर रूम में क्यों गई थी? भाभी बोली, राजेश ने मुझे वहां जाने पर मजबूर किया था क्योंकि इसे डर था कि नीचे से इसकी मां ऊपर ना आ जाए। मैंने शूज उतार कर बेड पर चढ़ते हुए कहा, चलो ये भी अच्छा हुआ कि राजेश ने तुम्हें सिटोर रूम में लाकर खुद ही मेरे सामने पेश कर दिया, वरना मुझे तुम्हारे बेडरूम के दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर आना पड़ता। भाभी बार बार बुलेट प्रूफ जैकेट को देखे जा रही थी। मैं इसका ध्यान बटाने के लिए बेड से उतरकर खड़ा होकर भाभी का बाजू खींचकर बोला, बेड से नीचे उतरो। भाभी सौलिया नजरों से मेरी जानिब देखते हुए बोली, यहां ही आ जाओ। मैं नफी में सर हिलाते हुए बोला, 1 मिनट नीचे तो आओ। रात को खत्म होने में अभी 2 से 3 घंटे बाकी थे, इसलिए मैं तसल्ली से मुलाकात करना चाह रहा था। कोई 1 घंटे की मुलाकात के बाद मैं छत की 4 दीवारी के पास पहुंचकर मैंने हल्का सा सर उठाकर छत का जायजा लेना शुरू कर दिया, मगर सिवाय अंधेरे के मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया। एक तरफ रास्ता बिल्कुल साफ था, दूसरी तरफ दिमाग में कई तरह के सवाल जन्म ले रहे थे कि कहीं एजेंसी के लोग नीचे ना मौजूद हों या फिर खुफिया तौर पर घर की निगरानी ना की जा रही हो। जहां मैं मौजूद था वहां रुकना भी खतरे से खाली नहीं था क्योंकि कुछ देर बाद उजाला फैलना शुरू हो जाना था। इस दौरान नीचे से कोई भी छत पर आ सकता था। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने हतमी फैसला करते हुए दीवार फलांग कर प्रीति की छत पर छलांग लगा दी। मैंने जो शूज पहने हुए थे देखने में तो वो आम से थे, मगर वो खास किस्म के चमड़े के शूज थे जिनके चलने या छलांग लगाने से आवाज पैदा नहीं होती थी
और इसमें कांटा तो दूर की बात कील तक नहीं घुस सकता था। मैं कुछ देर वहीं बैठा उगे ना कदम उठाने के बारे में सोच विचार करता रहा। अचानक मेरे जहन में प्रीति के घर के चौकीदार और घर की मुलाजमा का ख्याल आया। साथ ही मेरी छठी हिस्स ने बड़े खतरे का अलार्म बजा दिया, क्योंकि अगर प्रीति मेरे बारे में ना भी बताती तो एजेंसी के लोगों ने चौकीदार और मुलाजमा से पूछगुछ के दौरान उनसे सब कुछ उगलवा लेना था। मगर साथ ही वहां की खामोशी देखकर मुझे हैरत भी हो रही थी कि अगर मामला संजीदा रुख इख्तियार कर चुका था तो अब तक पूरे इलाके को एजेंसी के लोगों ने घेरे में ले लेना था। मजीद सूरत-हाल जानने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ना था। आखिर मैंने वहां बैठने की बजाय रिस्क लेते हुए नीचे जाकर सूरत-हाल देखने का फैसला करते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। मैं बड़े मोहतात अंदाज में एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ रहा था। मेरे हाथ में हथियार था। मैं हर आने वाले खतरे से निपटने के लिए खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर चुका था। सीढ़ियां उतर कर मैंने सेकंड फ्लोर का जायजा लेना शुरू कर दिया, मगर वहां भी खामोशी के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं सीढ़ियां उतर कर सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर चारों अतराफ का जायजा लेने के बाद ग्राउंड फ्लोर में ड्राइंग रूम का अहवाल देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा तो ड्राइंग रूम में टहलती प्रीति पर मेरी नजर पड़ी। वो बेचैनी में टहलते हुए बार बार सीढ़ियों की जानिब देख रही थी। मैं जिस जगह खड़ा था वहां इसकी नजर नहीं जा रही थी। मैं इसके चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश करने लगा। इसके चेहरे पर सिवाय बेचैनी के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने चंद लम्हे रुक कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया ताकि प्रीति के सामने जाकर उसका रिएक्शन चेक कर सकूं। मैं अभी सीढ़ियों की जानिब जाने का इरादा कर रहा था, इसी दौरान प्रीति सीढ़ियों की जानिब आने लगी। इसे सीढ़ियों की जानिब आते देखकर मैं वहीं रुक गया। कुछ ही देर में प्रीति सेकंड फ्लोर पर आ गई। ऊपर आते ही इसने नॉर्मल अंदाज में मेरी जानिब देखा। जैसे ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी प्रीति का पूरा जिस्म कांप उठा। इसने एक हाथ सीने पर और दूसरा हाथ अपने होंठों पर रखकर अपनी चीख को दबा दिया। चंद लम्हों की कैफियत के बाद जब इसे यकीन हो गया कि जैसे वो देख रही है वो मैं ही हूं, तो वो खुशी से मचलते हुए दोनों बाजू खोलकर मेरी जानिब भाग आई। इसकी बेचैनी और तड़प देखकर मैंने दोनों बाजू खोलकर इसे वेलकम करते हुए बाजू में भर लिया। प्रीति मेरी गर्दन पर बाजू डालकर जंप लगाकर मेरी कमर के गिर्द टांगों का हिसार बांधते हुए बच्चे की तरह मुझसे चिमटती हुए रोने लग गई। वो रोते हुए एक बात दोहरा रही थी, भगवान का शुक्र है तुम वापस आ गए, वरना मैं तो समझी तुम मुझे छोड़कर कहीं और निकल गए हो। मैं इसे बाजों में किसकर उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर जा सकता था? प्रीति बोली, मैं 1000 दफा छत पर जाकर तुम्हें देख चुकी मगर तुम मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ये मैंने कहा, मैं छत पर होता तो दिखाई देता। मैं तो चौथी कोठी की छत पर चला गया था। अच्छा ये बताओ वो लोग कब गए और तुम्हारी उनसे क्या बात हुई? प्रीति मेरी गर्दन में हाथ डालकर मेरे होंठों को चूमते हुए मेरी कमर से टांग खोलकर नीचे उतरते हुए बोली, नीचे चलो सब बताती हूँ। ये मैंने कहा, पहले ये बताओ कि किसी किस्म के खतरे वाली बात तो नहीं? प्रीति बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। वो लोग तुम्हारी तलाश में नहीं आए थे? मैं चौंक कर बोला, क्या मतलब? अगर मेरी तलाश में नहीं आए थे तो फिर ऐसे दीवार फलांग कर जबरदस्ती अंदर कैसे दाखिल हुए? और उनका हुलिया भी एजेंसी के बंदों जैसा था। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, नीचे तो चलो सब बताती हूँ कि वो कौन लोग थे और किसकी तलाश में आए थे। मैं डबल माइंडेड होकर प्रीति के साथ चलता हुआ सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे ड्राइंग रूम में आ गया। प्रीति ड्राइंग रूम में रुकने की बजाय मुझे बेडरूम में ले आई। बेडरूम में दाखिल होते ही वो फिर से मेरे साथ सिमट कर वालेहाना अंदाज में मेरे चेहरे के हर हिस्से को चूमने लगी। प्रीति ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे पता नहीं कितने अरसे बाद मुझे मिल रही हो, जबकि मैं अभी तक तजस्सुस में मुब्तला प्रीति से हकीकत जानने का मुंतज़िर था। आखिर में बेसब्री का मुजाहरा करते हुए प्रीति के कंधों को पकड़कर बोला, प्रीति प्लीज पहले मुझे असल बात बताओ कि वो कौन लोग थे और किसकी तलाश में आए थे, ताकि मैं ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो जाऊं। प्रीति बोली, वो एजेंसी के लोग नहीं थे और न ही वो तुम्हारी तलाश में आए थे, बल्कि पुलिस के लोग थे। 11 बजे दाएं जानिब वाली कोठी में कत्ल हुआ था। घर के अफराद ने कत्ल के दौरान बरवक्त पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए पुलिस मौके पर पहुंच गई। एक डकैत को पुलिस ने पकड़ लिया था, जबकि 2 अफराद भागने में कामयाब हो गए थे। पुलिस को शक था कि वो छत से कूदकर मेरी कोठी में घुस गए हैं,
इसी लिए वो कोठी की तलाशी लेने आए थे, मगर गार्ड उनको अंदर दाखिल होने नहीं दे रहा था, इसीलिए वो जबरदस्ती अंदर घुस आए थे। तुम्हारे जाने के आधे घंटे बाद वो लोग पूरी कोठी की छानबीन करके यहां से चले गए थे। मैंने शुक्र किया कि मैंने तुम्हें बाईं जानिब की छतों पर जाने का कहा था, वरना तुम उनकी नजरों में आ जाते। प्रीति की बात सुनकर मैं गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों से सर पकड़कर निढाल अंदाज में बेड पर गिर पड़ा। प्रीति मेरे करीब आकर बैठते हुए बोली, यासिर यू के? मैं यहाँ ओ कहकर बोला, यस आई एम ओके। सारा मजा खराब करके रख दिया। वो मेरी बात सुनकर प्रीति जोरदार हंसी लगाकर हंसते हुए बोली, सच में जब मुझे पता चला कि ये लोग तुम्हारी नहीं किसी और की तलाश में आए हैं, तब मुझे उन पर इतना गुस्सा आया था। दिल भी कर रहा था कि उनको शूट कर दूं। एक तो उन पर गुस्सा चढ़ रहा था, दूसरा मुझे तुम्हारे बारे में इतनी टेंशन हो रही थी कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि छत पर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाते हुए तुम्हें आवाजें देना शुरू कर देती। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने तुम्हें जाने क्यों दिया। मैंने कहा, यार इस वक्त हालात भी कुछ ऐसे थे कि मुझे यही लगा कि शायद तुम्हारे घर पर कॉल करने की वजह से उनको मालूम पड़ गया है। अगर मुझे इस चीज का वहम ना होता तो मैंने खुद ही नहीं जाना था। प्रीति बोली, चलो जो हुआ दफ करो। ये कहते हुए प्रीति बोली, तुम वापस आ गए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मैंने कहा, अगर मैं वापस ना आता तो? प्रीति मेरे साथ चिपक कर बोली, ऐसे कैसे जा सकते थे? इतनी दुआओं के बाद भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा था, फिर कैसे तुम जा सकते थे? मैंने कहा, चलो भगवान ने तुम्हारी दोबारा सुन ली। प्रीति बोली, इसमें कोई शक नहीं। कुछ देर बाद मैं प्रीति को नहाने का कहकर वॉशरूम में घुस गया। नहा कर फ्रेश होने के बाद मैंने वही ट्राउजर शर्ट पहन ली। प्रीति और मैं एक दूसरे के साथ काफी देर तक नॉर्मल बातें करते रहे। बातों के दौरान कब मेरी आंख लग गई मुझे नहीं मालूम पड़ा। मुझे बस यही पता था कि मैं प्रीति के साथ सो रहा हूं। जब मेरी आंख खिली तो प्रीति मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देख रही थी। आंखें खुलते ही सामने प्रीति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मैंने कहा, सुबह हो गई। प्रीति मेरा माथा चूम कर बोली, जनाब शाम होने वाली हो गई है। टाइम देखो 4 बज चुके हैं। मैं घड़ी की तरफ देखा तो वाकई 4 बज चुके थे। प्रीति बोली, बहुत गहरी नींद सोते हो? मैं प्रीति को बाजों में भर कर बोला, जब इतनी हसीन दिलरुबा की कुर्बत मुयस्सर हो तो बंदे पर खुद बखुद मदहोशी छा जाती है। अब अपनी मदहोशी खत्म करो, जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ। नाश्ता करने के बाद हमने बाजार जाना है। मैं हैरानगी से बोला, बाजार क्या करने जाना? प्रीति बोली, मैंने शॉपिंग करनी है और तुम मेरे साथ जा रहे हो। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मेरा साथ जाना क्या जरूरी है? प्रीति इस बात में सर हिलाते हुए मेरी नाक के साथ नाक रगड़ते हुए बोली, हाँ जी। ये कहकर प्रीति मेरे बाजुओं से निकलकर बेड से उतरते हुए बोली, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारा सूट वॉश करवा कर प्रेस करवा दिया है। मैंने कहा, लगता है तुम मुझसे पहले उठ गई थी। प्रीति बोली, मैं सुबह जल्दी उठने की आदी हूं, इसलिए मैं अपने वक्त पर उठ गई थी। मैंने कहा, मुझे भी उठा देती। प्रीति बोली, तुम जितनी गहरी नींद में सोए हुए थे मैंने खुद ही नहीं उठाया कि शायद तुम कई रातों से जाग रहे हो। मैंने कहा, हाँ यार ये तो तुम्हारी बात सच है। मैं गुज़िश्ता 2 रातों से जाग रहा हूं, इसलिए इतनी गहरी नींद सो रहा हूं। प्रीति एक बार फिर मुझे फ्रेश होने का कहकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं नहाकर बाहर निकला तो मेरा सूट वाकई प्रेस किया हुआ बेड पर पड़ा था। मैं कपड़े पहनकर तैयार होकर पगड़ी सर पर बांध रहा था। पगड़ी बांधने का तरीका मैंने बिलवीर सिंह से सीखा था, इसलिए मैं बड़ी आसानी से अच्छे अंदाज में पगड़ी बांध रहा था। कुछ देर में नाश्ता करने के बाद प्रीति से गुपशप होती रही। जब हम शॉपिंग के लिए निकले तो शाम की सियाही फैलनी शुरू हो गई थी। नींद पूरी होने और अच्छा खाना और साफ सुथरा लिबास पहनने की वजह से मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। बाजार पहुंचे तो प्रीति ने जबरदस्ती मेरे साइज के 3-4 करते पाजामे और इसी कलर की पगड़ियां भी और मेरे साइज के शूज ले लिए, जबकि इसने अपने लिए सिवाय सुर्ख रंग की ड्रेस के कुछ नहीं लिया, जिससे मुझे ये मालूम पड़ गया कि प्रीति मेरे लिए शॉपिंग करने आई है। शॉपिंग के बाद प्रीति मुझे मुख्तलिफ जगहों पर घुमाती रही। गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था, इसलिए प्रीति जहां जहां मुझे ले जा रही थी मैं सारी लोकेशन को ज़हन नशीन करता जा रहा था। चंडीगढ़ के बाजार सड़क की दुकानें बिल्कुल ऐसी थीं जैसे हमारे लाहौर के बाजार की दुकानें थीं। फर्क था तो सिर्फ लोगों का। यहां सिखों की अक्सरियत थी। हम जहां भी गए 80% सिख ही नजर आए।
एक दो दुकानें मुसलमानों की थीं जिनको देखकर उनसे बात करके अपनायत का एहसास भी हुआ, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं सिखों वाले अंदाज में उनसे बात कर पाया। रात 11 बजे हम वापस घर आ गए। रात का खाना भी हमने बाहर से खा लिया था। इस दौरान मैंने महसूस किया कि प्रीति हद से ज्यादा मेरे साथ अटैच हो चुकी थी। एक लम्हे के लिए भी इसके चेहरे से खुशी गायब नहीं हुई थी। गाड़ी में बैठने से लेकर बाजार में घूमने तक, और वो लम्हा भर के लिए भी मुझसे अलग नहीं हुई थी। कभी मेरा हाथ पकड़ लेती, कभी मेरे बाजू को अपने बाजू में भरकर मेरे कंधे पर सर रख लेती। ये पोजीशन बाजार में भी बरकरार रही। प्रीति की गोद में रहते हुए एक दिन में मुझे यूं लगने लगा जैसे मैं कई सालों से चंडीगढ़ में रह रहा हूं। घर आकर भी मुझे अपनायत का एहसास हो रहा था। जैसे एक दिन कब्ल में परायापन महसूस कर रहा था, वो अजनबियत अब अपनायत में बदल चुकी थी। घर आकर मैं और प्रीति सीधे कमरे में आ गए। प्रीति बेड पर बैठते हुए बोली, यासिर, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा। आज मुझे लगा कि मैंने जिंदगी को एंजॉय किया है। मैंने कहा, क्यों, पहले तुम कभी शॉपिंग पर नहीं गई? प्रीति बोली, 1000 दफा गई हूं, मगर आज तुम्हारे साथ होने की वजह से मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती गुजर रहा था। मेरे बस में होता तो मैं वक्त को रोक लेती। मैंने कहा, खैर है, इतनी मेहरबानी की वजह जान सकता हूं? प्रीति गहरा सांस लेते हुए कमर के बिल बेड पर गिरते हुए बोली, काश मैं तुम्हें अपना सीना चीर कर अपना दिल निकाल कर दुखा सकती जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। काश मैं अपने जज्बात, अपनी फीलिंग, अपने एहसासात तुम्हें दुखा सकती। मैं बोला, तुम्हें कुछ भी बताने दुखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारा खुलूस, सब कुछ तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे चेहरे की रौनक से, तुम्हारे किरदार से मुझे नजर आ रहा है। इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि अनजान मुख के अनजान शहर में अनजान लोगों की भीड़ में एक चाहने वाला मिल गया जिसने एक दिन में मेरे दिल में घर कर लिया है। मेरी बात सुनकर प्रीति खुशी से मचलते हुए बोली, सच्ची? मैं प्रीति की नकल उतारते हुए इसकी पुतली उठी हुई नाक को पकड़कर हिलाते हुए बोला, मची? प्रीति मेरे चेहरे को हाथों के प्यालों में लेते हुए बोली, हाय, मैं सदके जाऊं इसी खुशी में, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल तैयार होंगी। मैंने कहा, तुम तैयार ना भी हो तो तब भी तुम हसीन मक्यार लग रही हो। प्रीति मुस्करा कर बोली, यानी मैं तैयार ना हूं? मैंने कहा, मेरा मतलब ये तो नहीं कि तुम तैयार ना हो। अगर तुम मेरी खुशी के लिए ऐसा कुछ करना चाहती हो तो मुझे खुशी होगी। प्रीति बोली, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं भी तैयार होकर अभी आती हूं। ये कहकर प्रीति खुशी से मचलते हुए हवाओं में उड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। प्रीति के जाने के बाद मैं वॉशरूम में घुसकर नहाने लग गया। कुछ देर बाद नहाकर बाहर निकलकर कपड़े बदलने लग गया। कपड़े बदलने के दौरान मैंने जेब से मजून वाली डिब्बी निकालकर थोड़ी सी मजून मुंह में डालकर पानी से निगल ली। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि कल जब ये मजून खाई थी तो इसकी कड़वाहट इतनी शदीद थी कि मुझे अपना सांस रुकता महसूस होने लग गया था, मगर आज रत्ती बराबर भी कड़वाहट नहीं थी। मैंने कपड़े बदलकर बॉडी स्प्रे लगाकर बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। बैठने के चंद लम्हों बाद ही मेरी सोच ज़ौफ़ी और अपने साथियों की तरफ चली गई। सूफी का ख्याल आते ही मुझे बेचैनी सी होने लग गई कि सूफी ना जाने किस हाल में होगी। मुझे यूं बेफिक्र होकर यहां नहीं बैठे रहना चाहिए, मगर मैं बेबस था। ना तो सूफी के पास जा सकता था और ना ही हरियाणा जाकर जर्नैल सिंह के घर जा सकता था, क्योंकि वहां से भी 3-4 दिन गायब रहने का पैगाम मिल चुका था और दोबारा कॉल करने से भी मना कर दिया गया था। मैंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि अब मैं मजीद इस मुल्क में नहीं रहूंगा। जैसे ही अमृतसर सूफी के पास पहुंचूंगा, चाहे वहां के जैसे भी हालात हों, मैं सूफी लोगों को साथ लेकर अपने प्यारे वतन लूट जाना है। उन ख्यालों में डूबा कि इस आराइयां करते हुए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए जा रहे थे कि कमरे का दरवाज़ा खुलते देखकर ख्यालों की बस्ती से निकलकर दरवाजे से नमूदार होने वाले जलवा अफरोज मंजर ने अपने सेहर में जकड़ लिया। सिल्की गोल्डन बालों को कंधों पर खुला छोड़कर सुर्ख रंग की ड्रेस में पेंसिल हील पहने हुए मॉडल की तरह टांग पर टांग चढ़ाकर कमर पर हाथ रखकर दरवाजे के साथ कंधा लगाकर खड़ी मेरी जानिब देखकर मुस्करा रही थी। मेरे होंठों से बेइख्तियार निकला, वाओ सो ब्यूटीफुल। मेरे अल्फाजोहे की अदायगी देखकर प्रीति एक अदा से बालों को झटकुते हुए कमर लचका कर चलती हुई मेरी जानिब बढ़ने लगी। प्रीति को अपनी तरफ आते देखकर मैं बेइख्तियार बेड से उतर कर खड़ा हो गया। प्रीति मुझसे कुछ फासले पर खड़े होकर अदा से बोली, कैसी लग रही हूं? मैं रोमांटिक अंदाज में प्रीति की जानिब बढ़ते हुए बोला, ये पूछो क्या नहीं लग रही हो।
حسن تو پہلے ہی کم نہیں تھا، اس لباس نے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پریتی کی کمر میں بازو ڈال کر کمر پر ہاتھ رکھ کر پریتی کو جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ پریتی لڑکھڑانے کے انداز میں میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بالوں کو لہراتے ہوئے میرے چہرے کے سامنے چہرہ کر کے مخمور کن آنکھوں سے میری آنکھوں میں جھانکنے لگ گئی۔ میں پریتی کی نشیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے رومانٹک انداز میں بولا، تمہاری ان جھیل سی گہری آنکھوں کی قسم، تمہارے ان کھلتے گلاب ہونٹوں کی قسم، تم قیامت تھا رہی ہو، تم سر سے پاؤں تک حسن کا مجموعہ ہو۔ پریتی میرے بازو میں پیچھے کی جانب لٹکتے ہوئے اپنی سراہی دار گردن کو لمبا کر کے بولی، یہ بدن تو کیا، اس بدن میں جو روح سمائی ہے، اس روح کے بھی تم مالک ہو یاسر، آج مجھے اپنا بنا لو۔ کہا میں پریتی کو بازو میں اٹھا کر بیڈ کی جانب چل پڑا۔ پریتی میری گردن میں بازو ڈال کر نشیلے انداز میں میری جانب دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے پریتی کو بیڈ پر لٹا کر پریتی کے پیروں کے قریب بیٹھ کر اس کے پیروں کے ناخنوں پر لگی سرخ نیل پالش کو دیکھنے لگ گیا۔ گورے پیروں پر سرخ نیل کمال کی خوبصورتی لگ رہی تھی۔